میں مان ہی نہیں سکتی سپرو جی کہ آپ جیسے وجیح، خوش گفتار اور خوش مزاج انسان کی زندگی میں کوئی حسین ساتھی دل جیتنے آیا ہی نہ ہو۔ کامیابی ہوئی ہو یا ناکامی، بے فکر ہو کر بتا دیں۔ مجھے کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی عادت نہیں۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری زندگی کی کوئی چٹپٹی سی پریم کہانی سنے بغیر نہیں مانے گی۔ چنانچہ میں نے فی البدیہہ لارڈ الفریڈو لکاکس کی حسین و جمیل بیٹی ماریا کا کردار تخلیق کیا، جو اپنے ملک کی روایات کے برعکس 20-22 سال ہونے کے باوجود کسی بوائے فرینڈ سے محروم، یعنی دوسرے الفاظ میں پاک باز بھی تھی۔ یونیورسٹی آف لنڈن کی ایک لائبریری میں ایک ہی کتاب جاری کروانے کی کوشش کے نتیجے میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی، جو آئندہ ملاقاتوں کا ذریعہ بنی اور رفتہ رفتہ پہلے دوستی اور پھر محبت میں بدل گئی۔ میں اپنی فرضی داستان محبت کو حد الامکان سرسری رکھنے کی جستجو میں تھا، تاکہ کسی غیر منطقی یا متضاد بات سے میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ لیکن سرسوتی اتنی آسانی سے بہلاوے میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ وقفے سے مداخلت کر کے تفصیلات پوچھتی رہی اور اصرار کرتی رہی کہ میں پوری وضاحت کے ساتھ سارا احوال بیان کروں۔ ماریا کیسی تھی، وہ مجھ سے کس انداز میں بات کرتی تھی، میں اسے کس پیار کے نام سے پکارتا تھا۔ میں اس کے مطالبات پورے کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ مسئلہ یہ آن پڑا تھا کہ سرسوتی اپنی اس وقت تک کی گفتگو میں خود کو خاصا ذہین اور حاضر دماغ ثابت کر چکی تھی، لہٰذا مجھے خاصا محتاط ہو کر داستان ترازی کرنا پڑ رہی تھی۔ خدا کر کے کہانی ہماری شریفانہ لو سٹوری پروان چڑھنے سے آگے بڑھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے ماریا کو اپنے والدین سے ملوایا، انہیں دھرم کے فرق کے علاوہ اس میں کوئی نمایاں عیب نظر نہ آیا اور انہوں نے ماریا کو بطور بہو قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ لیکن مسائل اس وقت شروع ہوئے جب ماریا نے اپنے والدین سے میری ملاقات کروانے کی جستجو شروع کی۔ سرسوتی نے میری بات مکمل ہونے کا بمشکل انتظار کیا، بولی، اوہو، ماریا کا باپ تو لارڈ تھا نا، یعنی نواب۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک عام انسان سے شادی کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا تھا؟ میں نے کہا، صرف عام انسان نہیں، ایک ایسی کالی قوم کا فرد جو 200 سال تک ان گوروں کی غلام رہ چکی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ماریا کا باپ انگریز فوج کے اعلیٰ افسر کی حیثیت سے انڈیا میں 7 سال گزار چکا تھا، اور اس کے ذہن میں تمام ہندوستانیوں کی جاہل اور پسماندہ محکوموں اور غلاموں کے علاوہ کوئی شبیہ نہیں آتی تھی۔ وہ پہلے تو مجھ سے ملنے کو ہی تیار نہیں تھا، پھر ماریا کے بار بار اصرار کرنے پر اس شرط پر حامی بھر لی کہ میں اپنے والدین سمیت لندن کے سب سے معروف اور مہنگے ریسٹورانٹ میں ان کا مہمان بنوں گا۔ میں نے یہ سننے پر سرسوتی کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھرتے دیکھے۔ وہ ذہین عورت پہلے ہی اندازہ لگا رہی تھی کہ آگے کون سے واقعات رونما ہونے والے ہیں، تاہم اس نے مداخلت کی بجائے میرے کہانی آگے بڑھانے کا انتظار کیا۔ میں نے کہا، میں مقررہ دن مقررہ وقت پر اپنی ماتا اور پتا کے ساتھ ریٹز ریسٹورانٹ پہنچا۔ وہ ہمارے لیے نئی جگہ نہیں تھی، ہم اپنی زندگیوں کی کئی چھوٹی کامیابیوں اور خوشیوں کا جشن منانے وہاں جا چکے تھے اور وہاں کے ماحول اور آداب، مثلاً ڈریس کوڈ وغیرہ سے بخوبی واقف تھے۔ تاہم لارڈ الفریڈو لکاکس جیسے رئیس کا مہمان بن کر وہاں جانا ایک الگ ہی تجربہ تھا۔ ریسٹورانٹ کے مینیجر نے دروازے پر ہمارا استقبال کیا اور ایک الگ تھلگ گوشے میں لے گیا، جہاں ایک بڑی میز کے گرد صرف 6 کرسیاں تھیں، اور گفتگو کے دوران بار بار ہونے والے وقفے کے نتیجے میں ہو جانے والے سناٹے میں نزدیک موجود فوارے کی قلقل واحد آواز ہوتی تھی۔ میں نے گہرا سانس بھر کر اپنے اعصاب کشیدہ ہونے کا ناٹک کیا۔ کہا، ماریا اور اس کے والدین نے ہمارا نہایت پرتپاک استقبال کیا۔ ہم تینوں نے خاصا معقول لباس زیبدن کر رکھا تھا، لیکن لارڈ گھرانے سے ہمارا کوئی تقابل نہیں تھا۔ لارڈ الفریڈو نے کئی 100 پاؤنڈ کا 3 پیس سوٹ زیبدن کر رکھا تھا۔ ماریا کی ماں یعنی لیڈی لکاکس کا لباس بھی انتہائی بیش قیمت تھا اور اس کے گلے میں سچے موتیوں کا کئی لڑیوں والا ہار جگمگ کر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے معمول کے برعکس ہمارے سامنے کوئی مینیو نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ ہمارے بیٹھنے کے کچھ دیر کے بعد کئی طرح کی شرابوں سے میز سجا دی گئی۔ میں اور میرے پتا کبھی کبھار پی لیا کرتے تھے، لیکن میری ماتا نے زندگی بھر اس چیز سے نفرت کی تھی۔ وہ اسے کیسے ہاتھ لگاتی؟ میں نے درخواست کی کہ ان کے لیے پھلوں کا رس منگوا دیا جائے۔ سرسوتی نہایت محویت سے میری رام کہانی سن رہی تھی۔ یہ سن کر وہ کسمسائی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے بات آگے بڑھائی اور کہا، ماتا کے لیے نارنگی کا رس تو آ گیا، لیکن لارڈ اور لیڈی دیر تک ترحم آمیز لہجے میں میری ماتا کی کم نصیبی اور اتنی بڑی نعمت سے محرومی پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ میں اس دوران میں اپنے والدین کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ دونوں دل ہی دل میں کتنے تل ملا رہے ہیں۔ میرے پتا نے شکایت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے جواب میں ماریا کی توجہ اس تضحیک کی طرف مبذول کرنا چاہی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا کہ وہ بھی اپنے والدین کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
मैं चंद लम्हों के लिए ठहर कर बोला। फिर खाने का दौर चला जिसका मेन्यू शायद लॉर्ड लकॉक्स ने बजाते खुद तय किया था। उसके साथ ही मुझ पर उस दावत का पसे पर्दा मकसद वाज़े होने लगा। हमारे सामने यक के बाद दीगरे गोश्त से तैयार शुदा मुख्तलिफ खाने चुने जा रहे थे और लॉर्ड और लेडी लकॉक्स एक एक खाने की तरफ मेरी और मेरे वालिदैन की तवज्जो मबजूल करवा रहे थे। वो बोले, रिट्स की बीफ वेलिंगटन डिश पूरी दुनिया में मशहूर है मिस्टर सुप्रो। इसमें खास ग़िज़ाओं पर पली 1.5-2 साल की बच्चियां की गर्दन के पार्चे इस्तेमाल किए जाते हैं। और जूनियर सुप्रो, ये पेपर स्टिक मैंने खुसूसी तौर पर तुम्हारे लिए ऑर्डर की है। मुझे पता है आजकल के नौजवान स्टेक खाना पसंद करते हैं। ये भी मुंतखब बच्चियां के पठ के गोश्त के कत्लों से तैयार की जाती है। मैंने लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद कहा, मैं दिख रहा था कि मेरी माता और पिता हम सब के लिए कराहत अंगेज उन खानों से नजरें बचा रहे हैं। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी, लिहाजा मैंने पहले मारिया की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखा और उसका चेहरा बेतासुर पाकर लॉर्ड लकॉक्स को मुखातिब किया। आप हमसे जानबूझकर ज्यादती कर रहे हैं मिस्टर लकॉक्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी फैमिली मुकम्मल वेजिटेरियन है। खाना तो दरकनार, हम इस तरह के खानों को छूना भी गवारा नहीं करते। तुर्च लहजे में मेरी सख्त बात सुनकर वो नाराज होने की बजाय मुस्कुराया। बोला, बिल्कुल ठीक फरमाया मिस्टर सुप्रू। मैं यही बात अपनी लाडली बेटी और आपकी फैमिली को समझाना चाहता था, लेकिन मुझे अंदेशा था कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये ठीक है कि आज के जदीद दौर में दौलत और मर्तबे का फर्क उतना काबिल तवज्जो नहीं है। लंदन जैसे शहर में कोई भी तेज तर्रार शख्स कारोबारी दुनिया में चंद सालों की कोशिश के बाद लखपति बल्कि करोड़पति बन सकता है, लेकिन कुछ फर्क ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते और ऐसी किसी कोशिश का नतीजा भी अच्छा नहीं निकलता। मेरी नाजों पली बेटी शायद आपके खानदान में तंगी तुर्शी से गुजारा कर ले, लेकिन आप लोगों के गैर फितरी तर्ज जिंदगी से हम आहंग होने के लिए ये अपनी महबूब नेमतों से हमेशा के लिए किनारा कश हो जाए, ये मुझे किसी तरह गवारा नहीं। मैंने उदास सी नजरों से सरस्वती की तरफ देखा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि मारिया ने अपने बाप को टोकने की कोशिश नहीं की। उसे ये नहीं कहा कि अपनी मोहब्बत की खातिर वो इससे भी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। लॉर्ड लकॉक्स ने उसी पर बस न किया। उसने कहा, मैं इसलिए भी इस शादी के हक में नहीं हूँ कि हमारे खानदान के मजहबी अकायद बिल्कुल मुतजाद हैं। मेरा बाप एक रोमन कैथोलिक पादरी था और मारिया बचपन में हर इतवार को इबादत के लिए चर्च जाती थी। वो आपके घराने में कैसे आजादाना इबादत कर पाएगी? इतना कहकर मैं खामोश हो गया। सरस्वती ने कुछ देर मेरे बोलने का इंतजार किया, फिर बोली तो गोया उसके साथ ही कहानी खत्म हो गई। मैंने थके थके अंदाज में इस बात में गर्दन हिलाई। कहा, मेरे पिता उसी वक्त मेरी माता का हाथ पकड़कर रवाना होने के लिए तैयार हो गए। मैंने भी उनका साथ दिया। लॉर्ड लकॉक्स ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता मारिया ने अकब से मुझे जरूर पुकारा था, मगर मैंने पलट कर देखने की कोशिश न की। मारिया ने बाद में भी 1-2 बार राब्ते की कोशिश की, लेकिन मैंने तवज्जो न दी। दरअसल मुझे खुद भी शिद्दत से एहसास हुआ था कि बंधन उस्तवार करने की कोशिश बेसूद है। हम 2 अलग मदारों में गर्दिश करने वाले सैयारे हैं। हमने एक दूसरे के करीब आने की कोशिश की तो दोनों तबाह हो जाएंगे। मेरी मन घड़त कहानी ने सरस्वती को रंजीदा कर दिया। उसने खासी देर बाद धीमे लहजे में पूछा, उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई ऐसी हस्ती नहीं आई जो आपका दिल जीत पाती? मैंने जवाब में नफी में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मैं हाँ कहकर एक और अफसाना तराशने की सकत नहीं रखता था, खुसूसन ऐसी सूरत में कि वो सिर्फ वाक़यात में दिलचस्पी न रखती थी बल्कि किरदारों के बाहमी मुकालमात भी पूरे तासुरात समेत सुनाने पर इसरार करती। मुझे अब उसकी दूसरी नाकाम प्रेम कहानी सुनने में भी कोई खास दिलचस्पी महसूस न हो रही थी। हम कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने कहा, सरस्वती, आप मेरी खातिर यहाँ रुकी हुई हैं तो बराह करम मेरी फिक्र न करें। मैं कुछ ही देर में यहीं गहरी नींद सो जाऊंगा। आप भी ख्वाबगाह में जाकर सो जाएं। वो मेरी बात सुनकर तलखी से मुस्कुराई। बोली, मैं रात रात भर जागने की आदी हूँ सुप्रू जी। आप चाहते हैं कि मैं उस सरापा गलाजत मखलूक के साथ बिस्तर पर रात भर जाकर अपने मुकद्दर को रोती रहूं। आपको नींद आ रही है तो सेठी पर सो जाएं, मैं यहीं बैठे रात काट लूंगी। ये सुनने के बाद मेरे पास उसके साथ बातें करते रात गुजारने के अलावा कोई चारा न था। वो मुझे अपने बचपन के वाकयात सुनाती रही। मैंने अपने बचपन की कुछ फर्जी बातें उसे बताईं। फिर गुफ्तगू का रुख शेरो शायरी की तरफ फिर गया। वो रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, भगत कबीर, मिर्जा गालिब और दाग की मद्दाह निकली। वो अपनी पसंद के उर्दू अशार सुनाती रही। मैंने खुद को उस मामले में कोरा जाहिर किया और अपनी दिलचस्पी के दीगर मौजुआत पर बात करता रहा। वो मुकाबिल की हर बात गौर से सुनती थी और फिर अपनी बारी पर बेतकान बोलती थी। हमें पता ही न चला कि कब रात ढली और सुपेदाए सहर नमूदार हुआ।
बिलाखिर सरस्वती ने अपनी नशिस्त से उठते हुए गुफ्तगू के सिलसिले को मुअत्तल किया। बोली, ये मेरी जिंदगी का यादगार रत जगह है सुप्रू जी। आपकी बातों ने मुझे जीने का नया हौसला दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी ये मुलाकात आखिरी साबित ना हो। मुझे नहीं मालूम कि आप कब तक गोटी में हैं, लेकिन मेरी आजिजाना गुजारिश है कि अगर बदनामी का डर न हो तो कम से कम 1-2 बार मुझसे मिलने जरूर आएं। मेरी छोटी सी हवेली शांति लाल हलवाई की दुकान के ऐन मुकाबिल वाक़ है। मैं महिपाल को अब आपके हवाले से हिदायत कर देती हूँ। आप दिन के किसी भी पहर आ सकते हैं। मैंने कहा, मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर उस तरफ आने का इत्तेफाक हुआ और मुझे फुर्सत भी हुई तो जरूर हाजिरी दूंगा। रही बात बदनामी की तो फिक्र न करें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। वैसे भी मुझे कौन सा सारी उम्र यहाँ गुजारनी है। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। कुछ ही देर के बाद वो महिपाल के वहाँ से रुखसत होने के लिए तैयार हो गई। मुझसे इजाजत लेते हुए उसने कहा, आपके दोस्त प्रदीप सेन तो शायद दोपहर तक जागेंगे, मेरी तरफ से उनको प्रणाम कह दीजिएगा। सरस्वती के रुखसत होने के कुछ देर के बाद आलोक कुमार ने मुझे नाश्ता करवाया, जिसके बाद मैं वहाँ अकेला रह गया था। फिर जाने कब मेरी आंख लगी, मैं दोपहर तक सोता रहा। आंख खुली तो पता चला कि प्रदीप सेन अभी तक सोया हुआ है। ये सूरत हाल देखकर मैं वक्त गुजारी के लिए हवेली से निकल गया और छोटे से शहर के गली कूचों में मटर गश्त करने लगा। चलते चलते मैं बिला इरादा शहर के मरकजी बाजार में पहुंच गया, जहां मैंने शांतिलाल हलवाई की बड़ी दुकान के सामने सरस्वती की 2 मंजिला हवेली भी देख ली थी। तहम मैं वहां रुकने की बजाय सीधा निकलता चला गया और आबादी खत्म होने के बाद एक पथरीले रास्ते पर पहुंचा, जिसके सिरे पर नस्ब बोर्ड से पता चला कि ये रास्ता पहाड़ी पर वाक़े गोटी किले की तरफ जाता है। सामने खासे फासले पर कुछ खंडरात भी दिखाई दे रहे थे। मैं वहां से पलट आया और दरमियानी रफ्तार से चलता हुआ प्रदीप सेन की हवेली वापस पहुंच गया। मैं हॉल कमरे में दाखिल हुआ तो वहां आफत बपा थी। प्रदीप सेन गुस्से से पागल हो रहा था और मकामी जबान में चीख चीख कर कुछ कह रहा था, जबकि बेचारा आलोक कुमार कान दबाए उसकी डांट फिटकार सुन रहा था। प्रदीप सेन की गरज चमक में बार बार सरस्वती और महिपाल का नाम आ रहा था, जिससे मुझे उसके इश्तियाल के सबब का अंदाजा लगाने में कुछ मुश्किल न हुई। मैंने फौरन नफी में सर हिलाया और कहा, मैं जागा तो मुझे वो दिखाई न दी। मैं समझा कि वो तुम्हारे साथ ख्वाबगाह में है। आलोक ने मुझे नाश्ता दिया, फिर माहौल की आरामदेह ठंडक में मेरी आंख लग गई। जागने के बाद मुझे तुम्हारा दरवाजा बदस्तूर बंद नजर आया तो मैं वक्त गुजारी के लिए शहर की सैर को निकल गया। वो कुछ देर तक खाली खाली नजरों से मुझे देखता रहा। मैंने अनजान बनकर पूछा, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हारा सरस्वती या महिपाल से कोई झगड़ा हुआ है? वो इजाफी उजरत मांग रहे थे या वो दोनों यहाँ से कोई कीमती चीज चुरा कर ले गए हैं? मेरी बात सुनकर वो सटपटा गया। जाहिरी बात है वो मेरे सामने अपना शर्मनाक राज तो खोल नहीं सकता था, लिहाजा उसने अपने लहजे में गैज़ो गज़ब भरते हुए कहा, मैंने महिपाल को मुंह मांगी उजरत पेशगी दे दी थी। मुझे पता है उसने मामूल के मुआवजे से कम दुगनी रकम वसूल की है। सरस्वती को मेरे पास आने के लिए मनाने के नाम पर भी वो मुझसे भारी रकम ऐंठ चुका है। उसके बावजूद सरस्वती ने मेरे जागने का इंतजार करने की जहमत न की और मुझसे इजाजत लिए बगैर यहाँ से रफू चक्कर हो गई। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, ये तो खैर उन्होंने अच्छा नहीं किया। मेजबान से इजाजत लिए बगैर गायब हो जाना तो सरासर बदअखलाकी है, लेकिन एक बाजारी औरत से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। मेरा मशवरा है कि आप अपना इश्तियाल ठंडा करने की कोशिश करें। इतनी सी बात पर इतना शदीद गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। ताहम उसके इश्तियाल में कमी लाने की मेरी कोशिश नाकाम रही और वो मजीद भड़क उठा। बोला, मैंने उस नीच औरत को प्यार मोहब्बत से राम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब साबित हो गया है कि वो लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी। अब मैं उससे उसी जबान में बात करूंगा जो वो समझती है और ऐसा मजा चखाऊंगा कि अपनी आखिरी सांस तक याद रखेगी। उसे अपने हुस्न पर बड़ा घमंड है। मैं उसे बताऊंगा कि मेरी दौलत और ताकत के सामने उसके हुस्न की कोई औकात नहीं। मैं उसके तड़पने भड़कने की असल वजह बखूबी जानता था, मगर मैंने अनजान बनते हुए कहा, वो आपकी फरमाइश पर यहाँ आ तो गई थी प्रदीप सेन जी। सुबह बगैर बताए चला जाना इतना बड़ा कसूर नहीं है। हो सकता है वो रात भर जागने की वजह से बुरी तरह थक गई हो और उसे अपने घर के बिस्तर पर ही सुकून की नींद आती हो। मेरा ख्याल था कि वो मेरी बात सुनकर अपना शर्मनाक पोल खुलने के डर से अब खामोश हो जाएगा, लेकिन उसके तैश में कोई कमी नहीं आई। वो बोला, सुप्रू जी, आप खामखा उस गलीज औरत की हिमायत न करें। उसने मेरी तौहीन की है और उसे अपनी इस नापाक हरकत का संगीन खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे अंदाजा नहीं है कि प्रदीप सेन किस बला का नाम है। मेरी तौहीन करने वाले को इबरतनाक अंजाम से कोई नहीं बचा सकता। मैंने पहले सोचा कि उस बददिमाग शख्स को उसके हाल पर छोड़ दूं, फिर उसे गुस्से से कांपते देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो जो कुछ कह रहा है महज गीदड़ भपकियां नहीं है।
बल्कि वो सचमुच सरस्वती के खिलाफ कोई खतरनाक कार्रवाई करने का मुसम्मम इरादा रखता है। उसके शैतानी जज्बात की तस्कीन किए बगैर सरस्वती की रवानगी को उसने अना का मसला बना लिया था, खुसूसन ऐसी सूरत में कि मुझे पुख्ता यकीन था कि ऐसे में उसे इंतकामी इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद होती। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, सरस्वती ने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाकर बिलाशुबा आपके साथ सख्त ज्यादती की है। आपका उसकी तौहीन पर आग बगूला होना भी बेजा नहीं है, मगर मेरा मशवरा है कि उसके खिलाफ फौरन किसी कार्रवाई से गुरेज आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना सीधा आप पर इल्जाम आएगा, क्योंकि वो आज रात ही आपकी मेहमान बनी है। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन कदरे चौंका, फिर गुस्से की जगह उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने मुझे इशारे से नशिस्त पर बैठने को कहा और खुद भी मेरे साथ वाली सेठी पर बराजमान हो गया। इस दौरान मैं आलोक कुमार चुपके से खिसक गया था। मैं सवालिया नजरों से प्रदीप सेन का चेहरा देख रहा था। मैंने कहा, मैं इतना भी बेअक्ल नहीं हूँ सुप्रू जी, मैं हमेशा ठंडा करके खाता हूँ। अभी आपने मेरे काम करने का तरीका नहीं देखा, बस चंद दिन सब्र कर लें। मैं सरस्वती को ऐसे गायब करूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और मेरी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठेगी। उसकी बात सुनकर यकायक मेरे दिमाग में इश्तियाल की तेज लहर दौड़ गई। मेरा दिल चाहा अभी उसकी मुंडी मरोड़कर दुनिया को उसके नापाक बोझ से आजाद कर दूं। ताहम मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना पड़ा। रफ्ता रफ्ता मुझ पर उसका एतमाद बढ़ रहा था और अब वो वक्त दूर नहीं था जब वो मेरे सामने वो राज भी उगल देता जिन्हें जानने के लिए मैं उस गलीज इंसान के साथ चिपका हुआ था। मैंने गहरा सांस भरकर कहा, ओ अच्छा, तो आप सरस्वती को इगवा करना चाहते हैं। मैं समझा उसे इंतकामन जान से मरवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में किसी को जान से मरवाना ज्यादा आसान होता है। एक गोली चली और काम खत्म, जबकि इगवा करने में तो बहुत बखेड़े होते हैं। उसे जबरदस्ती उठाने के लिए बहुत सारे लोगों को जाना होगा जो लोगों की नजरों में आएंगे। वो कामयाब हो भी गए तो उनका पीछा करके उस ठिकाने यानी आपकी गांव वाली हवेली का पता चलाया जा सकता है जहां सरस्वती को ले जाया जाएगा। मैं अपना अनाड़ीपन जताने और प्रदीप सेन के मकरूह इरादों से ज्यादा वाकफियत हासिल करने के लिए ये सब फजूल की लफ्फाजी कर रहा था। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन ने एक बुलंद आहंग कहकहा लगाया और फिर कहा, आपने मुझे इतना अक्ल का अंधा समझ रखा है सुप्रू जी। सरस्वती जैसे हसीन खिलौनों को तोड़कर मुझे क्या मिलेगा? मैं कब्जे में आने के बाद अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगा और जब जी भर जाएगा तो भारी दाम खड़े करने के लिए उसे आगे भिजवा दूंगा। उसकी मकरूह शख्सियत से आगाह होने के बावजूद उसके इरादे सुनकर मुझे झटका लगा। वो सरस्वती को सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए इगवा नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे आगे फरोख्त करके माल बनाने का भी प्रोग्राम रखता था। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, लेकिन इस इगवा का शक आप पर आने का खतरा तो मौजूद रहेगा ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र न करें, इतनी सफाई से काम होगा कि कोई मेरी तरफ उंगली नहीं उठा सकेगा। उसे उठाने के लिए आने वालों की शनाख्त नामुमकिन होगी। वो जिन गाड़ियों में आएंगे उनका भी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। और सरस्वती के इगवा के बाद उसके आशिक किसी तीसमार खान की फरमाइश पर मेरी गांव वाली हवेली पर पुलिस ने छापा मारा भी तो वहां से कुछ बरामद नहीं होगा। मैंने उसकी बात सुनकर शदीद हैरत जाहिर करते हुए कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। प्रदीप सेन ने हंसते हुए कहा, अपनी तमाम तर समझदारी के बावजूद आप काफी भोले भाले इंसान हैं। मैं सरस्वती को इगवा करके रखने के लिए अपनी गांव वाली हवेली क्यों इस्तेमाल करूंगा? ऐसी कार्रवाइयों के लिए मैंने एक और ठिकाना बना रखा है जिसके बारे में मेरे खास बंदों के अलावा कोई नहीं जानता।